Good morning, student. The chapter which we are going to start today in our physics virtual class is rotation motion of a rigid body, that is moment of inertia. So let me start the chapter. First, we'll get to know what is rigid body. What is a rigid body? If an external force applied to a body does not produce any displacement of a particle of the body relative to each other, then the body is called a rigid body. So no real body is perfectly rigid. However, in solid bodies, like if we don't take rubber, then the relative displacement by the external force is so small that it can be neglected. Hence, ordinarily, when we speak of a body, we mean a rigid body. Now we have to define a term, that is moment of a force or torque. When an external force acting on a body has a tendency to rotate the body about an axis. Then the force is said to be exert a torque upon the body about this axis. The moment of a force or the torque about axis of rotation is equal to the product of magnitude of force and the perpendicular distance of the line of action. Force and the perpendicular distance between the axis and the force where we are applying it. Fine. The torque or moment of force is same as force in a ट्रांसलेशन मोशन. तो सीधी रेखा में ट्रांसलेशन मोशन होता है, उसमें बल का जो कार्य होता है, कोई भी रोटेशन मोशन में आपका टॉर्क या फोर्स का वही काम होता है. वहाँ पर तो फोर्स F से ही डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क निकालने के लिए आपको F के साथ साथ जिस अक्ष पे आप घुमा रहे हो उसके और जहाँ बल लगा रहे हो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है. So, in figure as shown, a body which is free to rotate about an axis passing through a point O and perpendicular to the plane of paper. When a force F is applied on the body in the plane of the paper, the body rotate about the axis. ठीक है, इस पर बल लगाएंगे तो ये इसके परित ऐसे घूमना शुरू कर देगा. जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ से पकड़ लूँ और मैं यहाँ से अगर इस पर बल लगाती हूँ तो ये ऐसे इस नीले पोर्शन पे बल लगाती हूँ तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, इस अक्ष के परित घूमना शुरू कर देगा. ठीक है, बल लगाने पर तब क्या हो जाएगा? When a force is applied on the body in the plane of paper, body rotate करेगा about this axis. If d be the perpendicular distance of the line of action, d क्या है? जिस लाइन पे एक्शन हो रहा है उससे और जिस अक्ष पे घूर्णन हो रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है of the line of action of the force from the point O, then the moment of the force, that is torque, जो वो कितना होगा? t टाउ, इसको टाउ बोलते हैं. ठीक है, ये t नहीं है, ये टाउ है. तो टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी. इफ़ द टॉर्क टेंड टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है देन इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे. द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन इसका है और मीटर इसके लिए है, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t-2. It is clear from the above formula that if d is 0, that is if the line of action of the force passes through O, ठीक है, यहाँ पर ही आ जाए, यहीं पर हम बल लगा रहे हैं, तो टॉर्क 0 होगा. In this situation the body will not rotate howsoever large the force may be. On the contrary, greater is the distance of the line of action of the force from O, larger is the moment of force or torque. इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ये मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ये दरवाजे का हिंज है जहाँ से दरवाज़ा आपका जुड़ा होता है, और ये आपका अगर दरवाज़ा है, यहाँ पर मान लीजिए ये दरवाज़ा है, तो हम हैंडल कहाँ लगाते हैं? हैंडल यहाँ लगाते हैं. यहाँ लगाएंगे तो अच्छे से वो काम नहीं करे, घूमेगा नहीं. यहाँ लगाएंगे तो काम, तो जितनी दूर लगाएंगे उतना अच्छा ये काम करेगा, और इस तरह से आपका दरवाज़ा इस अक्ष के परित घूमेगा या खुलेगा या बंद होगा. फिर आपका आता है रोटेशन मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. When a body rotates about a fixed axis, it is said to perform a rotational motion or an angular motion.
और एक्सिस जिसकी ये अलॉन्ग घूमता है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इन द रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, सर्कल में घूमेगा, एंड द सेंटर ऑफ दी सर्कल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर्कल कहाँ लाई, जो सर्कल में घूमेगा, जैसे कि इसको अगर मैं देखूँ तो इसको अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँ तो इसको घुमाना चाहूँ तो ये पूरे एक सर्कल में घूमेगा और जहाँ से रोटेट कर रही हूँ वो उसके सेंटर लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। सो एंड द सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्कल लाई एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ़ैन, अगर आप फ़ैन को देखें तो फ़ैन में भी यही चीज़ है, एक रॉड है उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो आप देख रहे हो कि एक सर्कल इस पर बनता चला जा रहा है। सो द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड द मोशन ऑफ अ टॉप, ठीक है, लट्टू का एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन मोशन। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज चेंजिंग विद टाइम देन इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड रोटेशन मोशन। समय के साथ बदल रहा है तो एक्सेलरेटेड हो गया। The rate of change of angular velocity of a body about its axis is called the angular acceleration of the body about this axis. इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। If the angular velocity of a body about an axis चेंज करता है डेल्टा ओमेगा टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, वो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, तो अल्फ़ा कितना हो गया, डी ओमेगा बटे डी टी। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन सेकेंड माइनस 2 और डायमेंशन टी माइनस 2, ठीक है। इसके हम बात करेंगे हमें टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हम किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे। सपोज़ करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ मेक्स एन एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये आप देख सकते हैं अल्फ़ा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, देन एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस अल्फ़ा और एफ वाई होगा एफ साइन अल्फ़ा। अगर एक्स वाई कार्टेशियन में हम ले लें पी को, तो आर बी द पोजीशन, ठीक है, आर दूरी पर आपका पॉइंट पी है ओरिजिन से, और थीटा एंगल आर बना रहा है एक्स एक्सिस से। देन आर डॉट थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट कहलाए जाएंगे। एक्स का मान कितना होगा, एक्स होगा कॉस थीटा क्योंकि बेस लाइन होती है, और वाई क्या होगा, आर का साइन फैक्टर क्योंकि वो आपका परपेंडिकुलर होता है। सो द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, टॉर्क होगा एक्स इंटू एफ वाई हो सकता है या माइनस वाई इंटू एफ एक्स, ठीक है। इनका मान अगर हम रखें तो हम देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ साइन अल्फ़ा माइनस आर साइन थीटा इंटू एफ कॉस अल्फ़ा, तो जगह आर एफ साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। ये आपको पता है साइन अल्फ़ा माइनस थीटा का फॉर्मूला है। मैथ्स वाले बच्चे इस फॉर्मूले से फेमिलियर होंगे, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं वो इसको जान ले कि इसका फॉर्मूले का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। तो इससे हमें टाउ कितना मिला, आर एफ साइन फाई, फाई क्या है, फाई वो एंगल है जो मैं अल्फ़ा माइनस थीटा को दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, क्योंकि आर साइन थीटा को हम डी, आर साइन थीटा को हम डी कह सकते हैं। कहाँ से आया है, तो यहाँ से हमने डी का मान निकाला। डी का मान जो है वो क्या आया है, मेरा डी का मान आया है आर साइन अल्फ़ा, ठीक है, आर साइन अल्फ़ा। ये हम आर साइन फाई, फाई क्या है, फाई है आपका थीटा माइनस अल्फ़ा, आर साइन फाई, आर साइन फाई, ठीक है। ये कोण बना, ठीक है, ये आर साइन, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज़ है, तो साइन का फॉर्मूला इसमें हमने यूज़ कर दिया है। दैट इज़ द टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से,
ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिस टर्म की, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी जो है वो कंटिन्यू करती है एक स्टेट ऑफ रेस्ट को, या यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन करती है अनलेस एंड अनलेस उसको हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब जब यही इनर्शिया हम रोटेशन मोशन में लेंगे तो क्या हो जाएगा कि व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस देन इट हैज़ अ टेंडेंसी, वो अपोज करता है एनी चेंज को इन द स्टेट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वो अपोज करता है एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास लेंगे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर हम यहाँ से इसको घुमा रहे हैं तो इससे जो उस कण की, उस पार्टिकल की दूरी होगी उसका आर स्क्वायर लेंगे। लेट देयर बी अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ से? अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू ओ से। इसके लिए हम मानेंगे कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं जिनकी दूरी r1 r2 r3 है। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो आई किसके बराबर होगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। इसी तरह से जितने पार्टिकल उसके लिए चलता चला जाएगा। तो आई कितना आता है? आई आता है सिग्मा mr स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा का मतलब सम है। फॉर अ बॉडी हैविंग अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसी में ये r स्क्वायर dm बन जाएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि एक जैसा बॉडी का सारा मास नहीं है। Thus the moment of inertia for rigid body about a given axis, sum of क्या है? Sum of the product of the masses of its particle by the square of their respective distance from axis of rotation। जिस एक्सेस से रोटेट कर रहा है उसके जो है उससे दूरी उस पार्टिकल की, तो दूरी का स्क्वायर और उसके मास को गुना करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड एज रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे आपका कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसको आप इस एक्सिस पे रोटेट करोगे। ठीक है, डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस, ये दूरी एक पॉइंट से जहाँ पर हम मानेंगे कि होल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब अगर मैं पूरे का असर देखूंगी तो मैं ये देखूंगी कि पूरे मास का जो असर है वो इसी बिंदु पर जो मास है उस पर हो रहा है, तब इस पॉइंट पे जो मास है उसकी जो दूरी है उसको हम k से डिनोट करते हैं, उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच, जिस पॉइंट पर इफ़ द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद इट्स एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर पूरे का निकालते तो जो मान आएगा उस पॉइंट पर निकाल देने पर भी मुझे वही मान मिल जाएगा। तो आई को हम कैसे लिखते हैं? आई को हम लिखते हैं m k स्क्वायर से, जहाँ चाहे तो हम यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू इट्स मास। रूट ले लें किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके मास का, तो इससे हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मिलता है। टोटल मास ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी जो है सपोज करते हैं कि उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है जो कि k दूरी पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो सो फार एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये एक बार हमें फ़ायदा पहुंचाता है, पूरे ना निकाल के उस पॉइंट का बस आप निकाल लो। ठीक, अब अगर हम देखना चाहें रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम क्या देखते हैं? हमें पता है अल्फ़ा वन क्या होगा, A1 होगा R1 इंटू अल्फ़ा। हमें पता है बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू ए, तो m r1 अल्फ़ा।
तो अगर मुझे मोमेंट निकालना हो तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम आर एल्फ़ा इंटू R1 हो गया, तो एम R1 स्क्वायर इंटू एल्फ़ा हो गया, और एम आर स्क्वायर जो है वो I के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं सब पार्टिकल्स का जोड़ लूँ, सब पार्टिकल्स को इसी तरह लिख लूँ, एल्फ़ा को बाहर कर लूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फ़ा, इसकी मदद से हम टॉर्क मोमेंटम जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इफ अबव इक्वेशन अल्फ़ा को 1 रख ले तो आई टाउ के बराबर है। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन। एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के काम आता है। अब जो हमें एक चीज़ पढ़नी है जिसको सिर्फ हमें सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में पढ़ना है, वो है आपका ये। ठीक है, कुछ स्ट्रेट रॉड्स और इन सब का हमको सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। एक्सेस ऑफ रोटेशन के हिसाब से अगर हम निकालना चाहें कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, तो थिन यूनिफॉर्म रॉड का होता है I = ml²/12। रेक्टेंगुलर लेमिना का होता है आपका I = ml²/12 + b²/12। इसी तरह आपका हुक और रिंग का होता है I = mr²। वृत्ताकार डिस्क दैट इज सर्कुलर डिस्क का होता है I = ½ mr²। सिलेंडर का होता है I = ml²/12 + r²/4। सॉलिड स्फेयर का होता है I = 2/5 mr²। और हॉलो स्फेयर का होता है I = 2/3 mr²। तो इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।